Good morning, friends. In the previous lecture, we understood the concept of circular flow of national income. Basically, there are various concepts related to that, like two sector economy, considering economy is divided into two sectors. The entire economy is divided into two sectors. First sector is the household, and the second sector is firms. Then another is three sector economy, in which, right, we divide economy into three parts. One, household, second, firm, and the third part is government. So पूरी economy इन तीनों में divide की जाएगी. Then comes four sector economy, in which the entire economy or entire transactions, right, is divided into four things: firm, household, government, and the foreign sector. So basically, two sector इकोनॉमी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी, इन चारों में नेशनल इनकम कैसे फ्लो होती है, यह एक कंसेप्ट है. बट आउट ऑफ दैट, राइट, इन आवर सिलेबस वी हैव टू सेक्टर इकोनॉमी. सो वी डिवाइड एंटायर इकोनॉमी इनटू टू सेक्टर्स: हाउसहोल्ड, which is known for the consumption of goods and services, and they are the providers of factors of production. On the contrary, firm is known as producers. They produce goods and services, and they are the buyers of the factor services. So all those who give some kind of services, who produces goods, who create services, all will fall under firms. All will fall under firms. And those who purchases goods and services and provides factor services will fall under your household sector. So household and firms में हम क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी डिवाइड करेंगे. There are basically two flows. One flow is real flow or the product flow. Like the household, try to understand, provides factor services to firms. Household provides factor services to the firms, and firms, using those factor services, produces goods and services and sells those goods and services to whom? Household. So transfer of factor services by household to the firm, and then sale of goods and services by the firms to household. ये जो flow हो रहा है, this is not monetary flow, इसमें money involved नहीं है. This is real flow or a product flow. This is called as real flow or a product flow. There is another flow which is called as money flow, in which money flows. That is, when household provides factor services to the firms, firm makes them payment of the factor services. So firms will pay to household the factor services. So it is expenditure of the firm and is income of the household. With that income, try to understand, with that income, household will purchase goods and services from the firms, and that is the money flows from household to the firm again. So पहले firm से household को पैसा गया by way of factor payments, like factor services का payment, and then household से फिर firms के पास पैसा गया as a consumption expenditure, maybe investment expenditure. ठीक है. So consumption plus investment expenditure के through वो फिर firms के पास गया. So you can see the money flows from firm to household and again from household to the firm. This will continuous. The production process will be continuous process because, right,
The human wants are ever. There is no end to the human wants, and therefore consumers will demand goods and services. Producers will produce goods and services. In order to produce goods and services, producers or the firms will hire factor services. In return, they will give factor income. By using that factor income, household will purchase goods and services and will make payment to the firms. So this process, this cycle, this flow will be continuous in the nature. So that is called as circular flow of national income. ये था आपका circular flow of national income. ठीक है? Then हमने देखा था एग्रीगेट डिमांड. मैंने एग्रीगेट डिमांड फंक्शन मैंने आपको एक फॉर्मूला लिख के दिया था. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन डिमांड रिप्रेजेंट एक्सपेंडिचर एज वेल. Demand represent expenditure because if I can estimate my demand, means I can estimate the expenditure made by my buyers. जो मेरी डिमांड है, जितना मैं कमाने वाला हूं वो किसी का एक्सपेंडिचर रहता है. Always remember, someone's income is someone's expenditure. So income should be equal to expenditure logically. In economics, income should be equal to expenditure because even profit is income and expenditure. Profit is the income of the owner and expenditure of the firms. Economics में simple चीज है. So your income is equal to your expenditure. So try to understand, demand for sellers represents income and it represents expenditure of the buyers. It has to be same. So if we can estimate the demand, we can estimate the expenditure in the economy, we can estimate the national income. So we have to understand the aggregate demand, not individual demand. We have to understand the aggregate demand. And aggregate demand is like consumption expenditure, means demand for consumption of goods and services. So consumption expenditure plus investment expenditure, right? Demand for investment avenues. People invest in the like various kinds of investments, portfolios, shares, debentures, various bank accounts, schemes, in the fixed assets. समझ में आ रहा है? So consumption expenditure plus investment expenditure plus government's expenditure. Government का expenditure on consumption as well as investment is combined together as a government expenditure. So पहले जो हमने consumption expenditure देखा C plus जो investment expenditure दिखा I, that is of the household and the firm. Household and firm का consumption and investment expenditure plus government का entire expenditure, that is consumption plus investment is represented by G. C plus I plus G. Plus, try to understand net income from abroad. Net income from abroad, X minus M, export minus import, plus receipts minus payments. Right? Foreign remittance की बात कर रहे हैं. So that is your, right, you can say, right, aggregate demand of the economy. And that aggregate demand represents national income as well. So you can see Y is equal to C plus I plus G plus X minus M plus receipt minus payment. फिर मैंने बोला था कि हमने 4 टर्म्स देखे थे. GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Domestic means within the territory. Domestic means within the territory. National means by Indians. So what are the definition that I gave you? Gross domestic product, GDP, is gross market value or money value of all final goods and services. Money value or market value of all final goods and services produced in the territory of a country within a year. So we're talking about in the territory. We're talking about money value
and that money value is a gross, means you have not deducted depreciation. So gross money value of final goods and services produced in the territory within a year. इसमें से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हर डेफिनेशन में रहेगा, मनी वैल्यू भी हर डेफिनेशन में रहेगा. सो मनी वैल्यू हर डेफिनेशन में रहेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज राइट हर डेफिनेशन में रहेगा, राइट विद इन ए ईयर ये भी हर डेफिनेशन में रहेगा. सो दैट इज अ जीडीपी. सेकंड वन वाज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज आफ्टर डिडक्टिंग depreciation from GDP. So it is not gross money income or gross market value, it is net market value. So definition is net market value of all final goods and services produced in the territory. Why territory? Because हम domestic की बात कर रहे हैं. Within a year. So what is the difference between GDP and NDP? Like GDP and NDP में difference है depreciation का. GDP में we have not deducted the depreciation. On the contrary, NDP में हमने depreciation minus किया होता है. ठीक है? Then the two next important terms, gross national income and or gross national product, GNP. जब भी हम N मतलब national की बात करते हैं, we are talking about by Indians, by residents, by nationals, production by Indians for India. समझ में आ रहा है? So gross national product is, try to understand, gross की बात करें इसलिए gross market value of final goods and services produced by resident. Don't say within the territory, that is wrong. Produced by resident across the world. Across the world मुझे प्रॉब्लम नहीं है. It's not टेरिटरी की लिमिट नहीं होती है. जब भी आप डोमेस्टिक इनकम की बात करते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हो, आप टेरिटरी की बात कर रहे हो. एंड जब आप नेशनल इनकम की बात कर रहे हो तो उसमें आप रेसिडेंट्स की बात कर रहे हो, एंड दैट कैन बी अर्न अक्रॉस द वर्ल्ड. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ द टेरिटरी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. और मैंने उस पर डिस्कशन भी किया था कि टेरिटरी लाइक डोमेस्टिक के लिए टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट एंड नेशनल इनकम के लिए रेसिडेंशिप is very important. Citizenship is important. So what is gross national product? Gross national product is a gross market value of all final goods and services produced by residents of a country within a year. ठीक है, within a year. Then next is right net national income or net national product. Gross को replace करो net से. So it is a net market value of all final goods and services produced by residents of a country within a year. ठीक है? So you have to understand the four definition. You have four variants out of total 9 variants of the national income. आपके सिलेबस में 4 चीजें हमने यहां तक डिस्कस किया था एंड उसके आगे हमें डिस्कस करना था. That is, let me go to the textbook. You have to understand the methods. ठीक है? The methods of measurement of national income. Methods of measurement of national income. ठीक है? Try to understand. There are 3 methods of measurement of the national income. We can measure national income at 3 levels. Try to understand. One is at a consumption level, that is consumption expenditure. Consumption method. Second is income method. And तीसरा है expenditure method. We can measure national income using one of these methods. Consumption, income और expenditure. But India में तीनों methods combinedly follow किए जाते हैं. Right? कोई एक particular method follow नहीं होती. Consumption method में हम measure करेंगे, right? Try to understand.
कंजम्पशन मेथड में हम फॉलो करेंगे, या कंजम्पशन बोलने की मैं आई विल से आउटपुट मेथड, इट इज बेटर, बाद में वो कंज्यूम होगा, आउटपुट, मोर अप्रोप्रिएट इज आउटपुट। ठीक है, आगे आउटपुट मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ध्यान देना, आउटपुट मेथड में हम क्या करेंगे, इकोनॉमी में जितना आउटपुट हो रहा है, इकोनॉमी में जितना आउटपुट हो रहा है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अगर उसको हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल आउटपुट पता चलेगा, विच इज नेशनल इनकम। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं, इकोनॉमी में देर आर मेनी फर्म्स, मिलियंस ऑफ फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उस सेक्टर को अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएगा, उस सब सेक्टर्स भी अलग अलग और सेक्टर्स में डिवाइड हो जाएंगे, एंड एट द एंड रहेंगे छोटे छोटे फर्म्स। सो देयर आर वेरी 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 लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इन इकोनॉमी। अगर हम उनके हर फर्म का आउटपुट लेते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द ईयर एंड उसका समेशन करेंगे, तो दैट इज नेशनल इनकम एज पर आउटपुट मेथड। जितना सिंपल है उतना सिंपल नहीं है एक्चुअल में। अनदर इज इनकम मेथड। We will take the income of all the citizens, all the firms, all the households, सबकी इनकम ले लेंगे, and we will take the sum of that. हमें नेशनल इनकम पता चलेगी from the income angle, but it is very difficult, people do not disclose their actual incomes. मैंने उस लास्ट लेक्चर में बोला था almost 2% of the entire population actually files the income tax returns. चलो हम 5% लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिकली 5% बोलते हैं, फिर भी 95% do not reveal their income. Then income method is more followed in the developed countries. India जैसे countries में income method is not that much popular. Expenditure method. So we will take the sum of the total expenditure, consumption expenditure of household and firms. We will take investment expenditure of the household and the firms, plus we will also include government's expenditure on consumption and investments. इसकी अगर हम टोटल ले सकते हैं तो यहां से हमें पता चलेगा नेशनल इनकम एज पर एक्सपेंडिचर मेथड. So there are, try to understand 3 ways of finding the national income: output, income and expenditure. Ideally the answer should be same. कोई भी मेथड के हिसाब से करो, आंसर शुड बी सेम. आइडियली बोल रहा हूं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, these methods. Output method can be, हम 2 तरीके से आउटपुट ले सकते हैं. वन होता है ग्रॉस मेथड, ग्रॉस अप्रोच, एंड दूसरा होता है नेट अप्रोच, नेट एडिशन एक्चुअली. ठीक है, सो देखते हैं अब एक एक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आउटपुट मेथड क्या लिखा है ध्यान देना. आई विल गो थ्रू द टेक्स्ट. This method of measuring national income is also known as product method or inventory method. ठीक है, product method or inventory method. This method approaches national income from which side? Output side. It approaches national income from output side. ठीक है. According to this method, economy is divided into different sectors, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड फिर उस सेक्टर को हम अलग अलग सब सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे, सच एज एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल इंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, अदर सर्विसेज. जितने सारे सेक्टर्स में आप डिवाइड कर सकते हो, उन सेक्टर्स में इकोनॉमी को डिवाइड करो, फिर उस सेक्टर को और सब सेक्टर्स में डिवाइड करो, एकदम माइक्रो लेवल पे जाओ. आई मीन मैक्रो से माइक्रो लेवल पे हमें जाना है. सो according to this method, the economy is divided into different subsectors. ठीक है, the output or product method is followed either by
क्या लिखा है ध्यान देना, द आउटपुट और प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड इधर बाय, दिस इज ऑप्शन, by valuing all final goods and services produced during a period, a year, at their market price, or by adding up all the values at each higher stage of production until these products are turned into final product. मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। इसका मतलब क्या, सपोज दिस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, दिस इज अ प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, we purchase raw material at 100, फिर हमने उसको फेज 1 से प्रोसेस किया, ठीक है, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। हमने फेज 1 से राइट उसको प्रोसेस किया, उसके लिए हमें 20 रुपीज लगे, फिर हमने उसको और प्रोसेस किया, उसके लिए हमें 10 रुपीज लगे, हमने उसको फाइनली प्रोसेस किया, अलग अलग फेजेस से जाएगा ना, प्रोडक्शन प्रोसेस से कंटिन्यूस प्रोसेस, उसके लिए हमें 5 रुपीज लगे। सो ये हो गया आपका फिनिश गुड्स, ये हो गया आपका फिनिश गुड्स। सो टोटल उसकी वैल्यू है 100 प्लस 20 प्लस 10, उसकी फिनिश गुड्स की वैल्यू 135। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। एक ऑप्शन है आप उसको डायरेक्टली 135 पे वैल्यू करो, डायरेक्टली 135 पे वैल्यू करो, मींस यू विल इग्नोर 100, यू विल इग्नोर 20, यू विल इग्नोर 10, यू विल इग्नोर 5। हम डायरेक्टली उसको फाइनल वैल्यू 135 ले लेंगे, दिस इज वन ऑप्शन। और हम क्या करेंगे, हर फेज में, हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हुई है, यहां पे 100 रुपीज ऐड हुए थे तो हम 100 लेंगे, यहां से यहां जाने के लिए उसमें 20 रुपीज ऐड हो गए तो हम ये 20 रुपीज लेंगे, फिर यहां से यहां जाने में 10 रुपीज ऐड हो गए, 10 रुपीज लेंगे, और WIP से ये फाइनल स्टेज में 5 रुपीज ऐड हो गए, 5 रुपीज ऐड करेंगे, इज 135। सो ये फाइनल है ना, 135 कैसा है, हर जगह पे जितनी वैल्यू ऐड हुई उसकी टोटल इज 135। तो एक ऑप्शन है डायरेक्टली 135 ले लो, और सेकंड ऑप्शन है हर स्टेज में जितनी वैल्यू एडिशन हुई ना उसकी समेशन ले लो, आपको फाइनल वैल्यू पता चलेगी। इससे सिंपल मैं और एक एग्जांपल दे सकता हूं जो आपको सबको पता है। एग्जांपल, देयर इज अ मैन्युफैक्चरर, बराबर, ही सोल्ड गुड्स टू होलसेलर, who sold goods to retailer, and retailer sold goods to final consumer, बराबर। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपीज में सेल किया किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने वो 130 रुपीज में सेल किया रिटेलर को, एंड रिटेलर ने वो कंज्यूमर को सेल किया 150 में। सो मुझे बोलो व्हाट इज द फाइनल वैल्यू, व्हाट इज फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू हम एज्यूम करेंगे इसके लिए रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट जीरो, हम एज्यूम करेंगे उसके लिए रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट जीरो, नहीं तो हमें फिर चेन आगे खींचनी पड़ेगी, हमें नहीं पता है इसलिए मैंने उसको जीरो, ऑलमोस्ट जीरो माना है, एक बहुत नील माना है। व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, फाइनल वैल्यू जो कस्टमर के हाथ में गई है वो 150 है, वो 150 है। ऑन द कॉन्ट्री वी विल टेक वैल्यू एडेड बाय, वैल्यू एडेड बाय, वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर, ध्यान देना, देन retailer, wholesaler, sorry, and third is retailer. How to find out value added by, what is the value of the finished goods for an input, आउटपुट एंड इनपुट का डिफरेंस ले लो, आउटपुट एंड इनपुट। ध्यान देना, मैन्युफैक्चर के लिए इनपुट की वैल्यू जीरो है, मैन्युफैक्चर के लिए इनपुट की वैल्यू जीरो है, एंड मैन्युफैक्चर का आउटपुट 100 है, देयरफॉर वैल्यू क्रिएटेड बाय और एडेड बाय
वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर इज 100, वैल्यू एडेड बाय मैन्युफैक्चरर इज 100, दोनों का डिफरेंस। होलसेलर की इनपुट 100 है, मैन्युफैक्चर का आउटपुट होलसेलर का इनपुट रहेगा, राइट ना। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 100 रुपीज चार्ज किए हैं, सो इनपुट वैल्यू ऑफ होलसेलर इज 100 एंड उसने रिटेलर को सेल किया 130 पे, सो उसका वैल्यू एडिशन 30 रुपीज है, उसका वैल्यू एडिशन 30 रुपीज है। देन होलसेलर ने रिटेलर को 130 में सेल किया, तो रिटेलर का इनपुट 130 में, जो उसने कंज्यूमर को सेल किया 150 पे, सो इसने वैल्यू ऐड की 20। सो प्रोडक्ट हैज पास थ्रू मल्टीपल फेजेस और मल्टीपल वैल्यू एडिशन फेजेस। पहले मैन्युफैक्चर के हाथ से वो होलसेलर के पास गया, होलसेलर के हाथ से वो रिटेलर के हाथ में गया, रिटेलर के हाथ से वो कंज्यूमर के हाथ में गया। डू यू एग्री विथ मी? जब कंज्यूमर के हाथ में गया तो व्हाट वाज दिस फाइनल वैल्यू? द फाइनल वैल्यू इज 150। सो एक अप्रोच बोलता है डायरेक्टली 150 ले लो, एक अप्रोच बोलता है, आउटपुट है ना, आउटपुट मेथड फॉलो करे, गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ध्यान देना। एक अप्रोच है डायरेक्टली 150 ले लो, डायरेक्टली 150 ले लो, या सेकंड अप्रोच है हर स्टेज पे जितना वैल्यू ऐड हुआ है उसको कंसिडर करो। मैन्युफैक्चरर के स्टेज पे 100 रुपीज ऐड हुआ है, होलसेलर के केस में 30 रुपीज ऐड हुआ है, रिटेलर के केस में 20 रुपीज ऐड किया है, तो हर एक ने अपने अपने स्टेजेस पे एडिशन किया है, उसकी एडिशन इज ऑल्सो 150। सो ये जो अप्रोच है ना, इसको वैल्यू एडेड अप्रोच बोलते हैं, वैल्यू एडेड अप्रोच, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन, वैल्यू एडेड अप्रोच। एंड ये जो अप्रोच है ना, डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट 150 पे ही लेना डायरेक्टली, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप्रोच, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप्रोच। दोनों में आंसर सेम ही आएगा, वेदर यू फॉलो ग्रॉस अप्रोच और यू फॉलो वैल्यू एडेड अप्रोच, आंसर शुड बी सेम। सो आउटपुट मेथड वही मैं बोल रहा हूं आपको, ग्रॉस अप्रोच ले लो या नेट अप्रोच। नेट अप्रोच मतलब, राइट, आई मीन वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड अप्रोच, कुछ भी ले लो चलेगा, आंसर रिमेन सेम। सो आउटपुट मेथड में हमने क्या किया, वी विल डिवाइड the entire economy into various sectors and subsectors. Then we will take the value of the output produced by each firm. That we can go as per gross approach or we can go as per, right, value added approach. अब देखते हैं क्या है, मैं फिर से वो सेंटेंस पढ़ता हूं तो अब क्लियर होगा, ध्यान देना क्या लिखा है, ध्यान देना। The output or the product method is followed either by valuing all final goods and services produced during a year at their market price, directly 150 पे ले लो, or by adding up all values at each higher stage of the production. मैन्युफैक्चरर ने 100 ऐड किया, होलसेलर ने 30 ऐड किया, रिटेलर ने 20 ऐड किया। जैसे जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं प्रोडक्शन स्टेज के, वैसे वैसे जो भी वैल्यू ऐड हो रही है हम उसको ऐड करेंगे। तो वही लिखा है, by adding up all the values at each stage of the production, at each higher stage of the production, until these products are turned into final product। मतलब जब तक वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं जाते तब तक हर स्टेज में जो वैल्यू ऐड हो रही है उसकी समेशन ले लो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज विच अप्रोच, नेट वैल्यू और वैल्यू एडेड अप्रोच। While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple or double counting. To avoid double counting, this method suggests two alternative approaches for the measurement of GNP. So to avoid double counting, instead of going gross approach, आप net value added approach भी follow कर सकते हो। There are two approaches. ध्यान देना, final goods approach और the final product approach। ठीक है, final goods are those goods which are ready for final consumption. Final goods are those goods which are given in the hands of the consumer, so which are ready for final consumption.
According to this method, value of all final goods and services produced in the primary, secondary and tertiary sectors are included and value of all intermediate transactions are ignored. मतलब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को कितने में दिया, इग्नोर करो. होलसेलर ने रिटेलर को कितना दिया, इग्नोर करो. रिटेलर ने कंज्यूमर को कितना दिया, वही कंसिडर करो. हम डायरेक्टली 150 कंसिडर करेंगे. ठीक है. सो फाइनल गुड्स अप्रोच में क्या लिखा है, ध्यान देना. लिखा है, राइट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, राइट. According to this approach, value of all final goods and services produced in the primary, secondary, tertiary sectors are included and values of all intermediate transactions are ignored. Intermediate goods are involved in the process of producing final goods. Intermediate goods are involved in the process of producing final goods. मतलब जब हम 150 की बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चर का 100 रुपीज है, होलसेलर का 30 रुपीज है और रिटेलर का भी 20 रुपीज है. सो जब मैं फाइनल गुड्स की वैल्यू लेता हूं तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. सो वही लिखा है, इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, दैट इज द फाइनल फ्लो ऑफ आउटपुट परचेज बाय कंज्यूमर्स, राइट. हेंस द वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. सो अगर आपको डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है तो आप डायरेक्टली क्या करो, फाइनल प्रोडक्ट के गुड्स एंड सर्विसेज लो. बट द प्रॉब्लम इटसेल्फ इज व्हिच इज फाइनल एंड व्हिच इज नॉट द फाइनल. जो हमें फाइनल लगता है वो मे बी फाइनल नहीं हो सकता. ठीक है. सो थ्योरी में हम बोलते हैं इग्नोर इंटरमीडिएट गुड्स, डायरेक्टली फाइनल गुड्स की वैल्यू ले लो, यू विल गेट द नेशनल इनकम एज पर आउटपुट मेथड. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ द ब्रेड इंक्लूड्स द प्राइस ऑफ wheat, making of flour, etc. Right? Both wheat and flour, right, are intermediate goods. Their values are paid up during the process of the production. हम intermediate goods की prices pay करते हैं and those are added in the values of the final product. In the final product, that is the bread, the value of intermediate goods are already included. Thus, a separate accounting of the values of intermediate goods along with the accounting of the final product would mean double counting. अगर आप final product की भी value ले रहे हो and वो final product बनाने के लिए जो जो intermediate goods use किए उसकी भी value लेते हो तो आप वो double counting कर रहे हो. Because जब हम bread की value ले रहे तो wheat की value already included है. Try to understand. जब हम clothes की value ले रहे तो cotton की value already included है. Try to understand. So या clothes की value ले लो, cotton को ignore करो, bread की value ले लो, विट को इग्नोर करो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये समझना इंपॉर्टेंट है, हम दोनों नहीं लेना चाहिए. आगे, टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी कंप्यूटेड. सो ये आ गया आपका आउटपुट मेथड. ये कौन सी मेथड आ गई? आउटपुट मेथड. उसमें कौन सा अप्रोच आ गया? फाइनल गुड्स अप्रोच. कौन सा अप्रोच आ गया? फाइनल गुड्स. जो फाइनल गुड्स है, जो कंज्यूमर के हाथ में जाएंगे, उनकी डायरेक्टली वैल्यू ले लो एंड इग्नोर ऑल इंटरमीडिएट goods which are used to produce the final goods. हम खाली final goods की value लेंगे. We will ignore intermediate goods to avoid double counting because the values of the intermediate goods is already included in the value of the final goods. अगर आप final goods की value लेते हो तो intermediate की goods की value अपने आप आ जाती है, तो इसलिए उनको अलग से मत ले लो. ठीक है. Then value added approach, जब इससे मैंने अभी डिस्कस किया था वही value added method. In order to avoid double counting, value added approach is used. मैंने बोला था अगर आपको double counting avoid करनी है तो आप value added approach follow करो. According to this method, value added at each stage of the production is included. क्या लिखा है उन्होंने? Value added at each stage of the production is included. The difference between value of the final output and input at each stage of the production is called as value added. हर स्टेज पे हर स्टेज का आउटपुट की वैल्यू माइनस हर स्टेज की इनपुट की वैल्यू करोगे तो उस स्टेज पे कितनी वैल्यू क्रिएशन हो गई वो पता चलेगा. जैसे मैंने मैन्युफैक्चर के टाइम मैन्युफैक्चर का इनपुट 0 रुपीज एंड मैन्युफैक्चर आउटपुट 100 रुपीज, तो मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे 100 रुपीज क्या हुआ, वैल्यू एड हो गया. होलसेलर का इनपुट 100 का था, उसका आउटपुट 130 का था, तो 130 माइनस 100, 30 रुपीज वैल्यू एडेड एट ए होलसेलर्स पॉइंट.
रिटेलर के केस में इनपुट 130 का है, आउटपुट 150 का है, इसलिए उस पर 20 रुपीज ऐड हो गया। तो वही मैं बोल रहा हूँ, व्हाट इज वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज? द वैल्यू ऑफ द आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ द इनपुट एट दैट स्टेज इज अ वैल्यू एडेड एट दैट आउटपुट। आगे क्या लिखा है ध्यान देना, द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ द फाइनल आउटपुट एंड इनपुट at each stage of the production is called as value added. Thus, GNP, gross national product, is obtained as sum total of value added by all different stages of the production processes till the final output is reached in the hands of consumers to meet the final demand. So, जितने सारे फाइनल गुड्स कंज्यूमर के हाथ में जाएंगे, हम उनकी वो चेन मेंटेन करेंगे और हर स्टेज पे जितनी जितनी वैल्यू ऐड हुई है, हम उस वैल्यू एडिशन की टोटल लेके वी विल फाइंड आउट द नेशनल इनकम। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द फॉलोइंग एग्जांपल। दिस इज कॉटन, ध्यान देना, राइट? हमें शर्ट बनाना है, हमें क्या बनाना है? शर्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वैल्यू ऑफ द शर्ट इज 500, मार्केट में वैल्यू ऑफ द शर्ट इज 500, बट उसकी प्रोसेस क्या है? पहले कॉटन लिया 100 रुपीज, कॉटन को यान में कन्वर्ट किया एंड यान को किस में कन्वर्ट किया? क्लोथ को। ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज है। सो कॉटन 150 में गिरा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फार्मर, हु विल प्रोड्यूस कॉटन? फार्मर। हु विल प्रोड्यूस कॉटन? फार्मर। फार्मर ने क्या किया? उसकी इनपुट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो मानी है। ऐसे होगा नहीं कि इनपुट जीरो रहेगा फार्मर का, ही हैज टू इंकर सम एक्सपेंडिचर, बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज हमने जीरो माना है। सो फार्मर ने 0 रुपीज का इनपुट इंकर किया एंड उसने जो कॉटन प्रोड्यूस किया वो उसने 150 में सेल किया, किसको? मिल को। सो वैल्यू एडेड बाय फार्मर इज 150। इसका इनपुट यहां पे आउटपुट बन जाएगा। इसने 150 में कॉटन परचेज किया एंड उसका आउटपुट की वैल्यू 250 है, जो राइट क्लोथ के लिए यूज किया जाएगा। सो 150 इनपुट है, 250 आउटपुट है, तो इसका वैल्यू एडिशन 100 है। सो इसकी इनपुट 250 हो गई और शर्ट बन रहा है 400 रुपीज में, तो वो बन गया आपका 150 का एडिशन। एंड जब हमने शर्ट सेल किया तो हमने 500 में सेल किया, जो 400 की कॉस्ट थी हमने 500 में सेल किया, 100 रुपीज पे यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो गई, टोटल वैल्यू एडिशन इज 500। देखो नीचे वही लिखा है, value added each stage is calculated by deducting the value of inputs from the value of output produced. The sum total added at different stages, right, making GNP. तो अगर हम की टोटल लेते तो हमें GNP पता चलेगा। In the above table, the value of the final good shirt is 500. The sum total of the value added at each stage of the production is also 500. Thus, total value added is equal to value of the final goods. जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं, ठीक है, ये समझ लेना। आगे देन नेक्स्ट, क्लियर है? विच मेथड इज जनरली फॉलोड? वैल्यू एडेड मेथड इज मोर इफिशिएंट देन दिस मेथड। ऐसे कुछ नहीं है, यू कैन फॉलो एनी मेथड। अगर आपके पास प्रोसेस के डिटेल्स नहीं है तो आप कौन सी मेथड फॉलो करोगे? फाइनल आउटपुट। अगर आपके पास थ्रू आउट प्रोसेस है, आप कौन सी मेथड फॉलो करो? value added, but at the end answer of both the methods is same, so there is no choice कि method 1 final goods approach follow करो या value added approach follow करो, आंसर इज सेम, दोनों का आंसर सेम ही आता है। ठीक है, देखो ना, अगर हम फाइनल वैल्यू लेते तो हम 500 रुपए लेंगे, अगर वैल्यू एडेड मेथड लेते तो भी 500 ही आएगा। सो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कुछ भी मेथड फॉलो करो, ग्रॉस प्रोडक्ट मेथड फॉलो करो, फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच फाइनल मेथड फॉलो करो या वैल्यू एडेड मेथड फॉलो करो, आंसर रिमेन्स सेम। सो देयर इज नो चॉइस। प्रिकॉशंस, अब क्या प्रिकॉशन से ध्यान देना? While estimating national income by output method, following precautions should be taken. To avoid double counting, only value of final goods and services must be taken into account. Second, goods used for the self-consumption by the farmer should be estimated by a guesswork. जो फार्मर्स कंज्यूम करेगा खुद के लिए, जो प्रोड्यूस करेगा पूरे का पूरा तो मार्केट में सेल नहीं होगा, राइट?
जो पूरा का पूरा सेल होगा, जो पूरा का पूरा प्रोड्यूस होगा, वो पूरा का पूरा तो सेल नहीं करेगा, वो खुद के लिए भी कंज्यूम करेगा, तो वो भी आउटपुट है ना, जो कलेक्टिव कंजम्पशन हुआ है वो भी आउटपुट है, बट उसका तो कहाँ पे अकाउंटिंग नहीं आएगा। उसने जो मार्केट में लाया वो हमें पता होगा, चलो मार्केट में आ गया इसलिए, बट उसने जो कंज्यूम किया उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो वी हैव टू मेक सम गेस वर्क कि कितना कंजम्पशन किया होगा, ठीक है। सो गुड्स यूज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन बाय द फार्मर्स should be estimated by the guesswork. Imputed value of goods produced for the self consumption is included in the national income. Imputed value means, imputed मतलब आप बोल सकते हो गेस वर्क से जो वैल्यू आएगी हमें, हम वो वैल्यू लेंगे, राइट, फॉर द नेशनल इनकम। वो कितनी करेक्ट होगी नो वन नोज, हम एस्टिमेट्स यूज करें, हम गेस वर्क यूज कर रहे हैं, हम हमारा पास्ट एक्सपीरियंस यूज करेंगे। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइसेस, बिकॉज जब कोई चीज सेल होती है मार्केट में उसमें जीएसटी होता है, बराबर ना। उसमें क्या होता है जीएसटी, अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हो, लाइक आपने मोबाइल परचेस किया 30,000 का, उसकी मार्केट प्राइस 30,000 है, मतलब उसमें टैक्सेस ऐड होते हैं, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू 27,000 ही है, प्लस जीएसटी 3,000, सपोज वो दिखता है 30,000 का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। So indirect taxes included in the market prices are to be deducted, and subsidies given by the government to ascertain the product should be added to accurate estimation of the national income. ध्यान देना, जो गैस सिलेंडर है वो एक्चुअली 700 रुपए का है, गैस सिलेंडर एक्चुअली 700 रुपए का है, बट गवर्नमेंट ने आपको 200 रुपए की सब्सिडी दी है, तो एक्चुअली आपको कितने में गिरता है, वो 500 रुपए में गिरता है। तो मार्केट प्राइस दिख रही 500, एक गैस सिलेंडर की मार्केट प्राइस दिख रही 500, बट इट इज नॉट ऑफ द 500, इट्स एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज 700। तो हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 500 नहीं लेने, हमें 700 रुपए लेने। सिमिलरली जो मोबाइल 27,000 का है, 3,000 जीएसटी ऐड हुआ है, और मार्केट में दिखता है वो 30,000 का, मार्केट वैल्यू दिखती है 30,000, हमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में 30,000 नहीं लेना है, हमें 27,000 लेना है। इसका मतलब हमें 30,000 जिसमें टैक्सेस ऐड है, हमें टैक्सेस माइनस करने, इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम मार्केट वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ढूंढते हैं ना, तब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी डिडक्टेड। 30,000 से मैंने 3,000 माइनस किया, तब जाके मुझे एक्चुअल मार्केट प्राइस पता चली, इनडायरेक्ट टैक्सेस टू बी डिडक्टेड। सो जब हम मार्केट वैल्यू ले रहे हैं ना, तो हमें ये एडजस्टमेंट करनी है, उस मार्केट वैल्यू में इनडायरेक्ट टैक्सेस रहेंगे, वो माइनस करो। एंड हम सिलेंडर 500 रुपए पे नहीं लेना है, जो आइटम सब्सिडाइज आइटम्स होते हैं, लाइक सिलेंडर, वो सब्सिडाइज है, केरोसिन ऑयल वो सब्सिडाइज रहता है, तो एक्चुअल में उसकी मार्केट वैल्यू 500 नहीं है, उसकी मार्केट वैल्यू 700 है, तो हमें उसको एक्चुअल मार्केट वैल्यू पे लेके जा रहे हैं 700 पे। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने डिडक्ट की होती है, हम उसको एड बैक करेंगे, सब्सिडीज, सब्सिडीज टू बी एडेड। तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने, ध्यान देना, हमें प्रिकॉशन लेना है कि डबल काउंटिंग ना हो, हमें प्रिकॉशन लेना है डबल काउंटिंग ना हो। दूसरी प्रिकॉशन लेनी है कि जो कैप्टिव कंज्यूम हुआ है, हमें उसकी इंप्यूटेड वैल्यू, गेस एस्टिमेटेड वैल्यू ढूंढनी है। तीसरी हमें प्रिकॉशन लेनी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें माइनस करना है, एंड सब्सिडीज को हमें ऐड बैक करना है टू फाइंड आउट एक्चुअल मार्केट वैल्यू, टू फाइंड आउट एक्चुअल मार्केट वैल्यू। देन आगे फोर्थ प्रिकॉशन, while evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account. Inflation भी consider करना पड़ता है, try to understand. Prices are increasing just because, right, inflation is there, it is not the real output. Example, क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना, ध्यान देना, suppose there is an output of 1,000 units in 2010 and 2020, ठीक है। एक आउटपुट की प्राइस इन 2010 was, try to understand, 100 rupees, and 2020 में it is 110,
पर यूनिट बोल रहा हूं, ठीक है। सो 2010 में हम बोलेंगे 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, तो टोटल कितने की यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए? 10,000। 1 लाख की यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए, कितने की यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए? 2010 की हिसाब से इट इज 1 लाख। 2020 में भी 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट द प्राइस लेवल हैज इंक्रीज्ड बाय 10%, वो 110 है, तो 110 मल्टीप्लाई बाय 1000, अब वो रहेगा 1,10,000। अगर आप रुपीस टर्म्स में देखते हो, आपको दिखेगा कि 2010 में आपने 1 लाख का आउटपुट प्रोड्यूस किया था, 2010 में आपने 1 लाख रुपीस का आउटपुट प्रोड्यूस किया था, एंड 2020 में आपने 1,10,000 का आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो कोई मनी वैल्यू देख के लगेगा कि हमारा 10,000 से आउटपुट इंक्रीज हुआ है, कोई बोलेगा कि हमारा 10,000 से आउटपुट इंक्रीज होगा, सीतारामन जैसे लोग, कि उनको लगेगा कि 10,000 से हमारा आउटपुट इंक्रीज हुआ है। हम बोलेंगे कि हमारी इनकम 10,000 से इंक्रीज हुई, एक्चुअली इनकम इज सेम। 2010 में भी आउटपुट 1,000 ही था, 2020 में भी आउटपुट 1,000 ही है, सो देयर इज नो इंक्रीज इन द आउटपुट, देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इंक्रीज इन द जीडीपी। जीडीपी सेम ही है, आउटपुट सेम ही है, खाली प्राइजेस हैज इंक्रीज, इसलिए हमें लग रहा है कि इनकम हैज इंक्रीज और आउटपुट हैज इंक्रीज। 2 years में देयर इज अ चेंज इन द प्राइस लेवल, 2 years में देयर इज अ चेंज इन द प्राइस लेवल। ये जो 10,000, 1 लाख जो आउटपुट की वैल्यू दिख रही थी 2010 में, उसी आउटपुट की आज वैल्यू दिख रही है 1,10,000। तो आप बोलोगे सर 1 लाख का आउटपुट 2010 में प्रोड्यूस हो रहा था, 1,10,000 का आउटपुट 2020 में प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब 10,000 की ग्रोथ हुई है। इट इज रॉन्ग, दैट ग्रोथ इज नॉट द ग्रोथ, इट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। सो ऐसी ग्रोथ जो दिखती है वो कोई काम की नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो हम वही बोल रहे हैं कि जब ऐसे प्राइस लेवल चेंज होती है तो हमने उसको कंसिडर करना है, इसलिए नेशनल इनकम इज ऑलवेज मेंशन विथ रिस्पेक्ट टू सम बेस ईयर, बिकॉज नेशनल इनकम इज लाइक इंडेक्स नंबर जिसको हम बेस ईयर लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना, हम बोलेंगे नेशनल इनकम ऑफ 2020 इज, हम बोलेंगे इज 1 लाख with respect to 2010. National income of 2020 is 1 lakh with respect to 2010 by taking the prices of 2010 as a base. 2010 के प्राइजेस को बेस लेके 100 रुपीज द प्राइस थी, उसको बेस लेके 2020 में 1 लाख ही इनकम है, तो तभी भी 1 लाख थी, आज भी 1 लाख है, मतलब आपको दिख के समझ में आएगा देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो ग्रोथ। या एग्जाम्पल ऐसे पकड़ के चलो, और एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, ध्यान देना, ऐसे पकड़ के चलो। 2010 का एक एग्जाम्पल है, ध्यान देना, क्वांटिटी कितनी है? 1000 यूनिट्स। 2020 का एक ईयर है 1200 यूनिट्स। डू यू फील कि देयर इज अ ग्रोथ? यस, आई फील देयर इज अ ग्रोथ बिकॉज आउटपुट इंक्रीज हुआ है। ध्यान देना, आउटपुट इंक्रीज हुआ है, सो आउटपुट इंक्रीज होना इज अ ग्रोथ। डेवलपमेंट अलग है, आउटपुट इंक्रीज, डेवलपमेंट इज अ मोर देन ग्रोथ, डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, आपने 11th में सीखा होगा। सो पहले 2010 में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 2020 में 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आई विल से दिस ग्रोथ है, ग्रोथ मानता हूं। प्राइस पर यूनिट देखते हैं, 2010 में प्राइस वाज ₹100 पर यूनिट, एंड यहाँ पे ₹110 पर यूनिट। प्राइस लेवल हैज गॉन अप, प्राइस लेवल हैज गॉन अप, देयरफॉर इनकम कितनी दिख रही है, या आउटपुट रुपीज में कितना दिख रहा है? क्वांटिटी में लिखा आउटपुट, अब हम किस में देखेंगे? रुपीज में देखेंगे। 2010 में वो 1 लाख का दिखेगा, 2010 में वो 1 लाख का दिखेगा एट ए प्राइस लेवल ऑफ 2010। 2010 में मेरा आउटपुट दिख रहा है 1 लाख का एट ए प्राइस लेवल ऑफ 2010। 2020 में वो मेरा दिख रहा है, कोई मुझे बोलेगा कितना दिख रहा है? 1200 मल्टीप्लाई बाय 1100, 1200 मल्टीप्लाई 110। कोई बोलेगा मुझे, लेट मी कैलकुलेट,
1200 multiply by 110, 1,30,000. ध्यान देना, मैं बहुत सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं है. आउटपुट गवर्नमेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट दो तरीके से बोल सकती है. एक बोलेंगे कि 2010 में 1 लाख का आउटपुट था, 2020 में 1,30,000 का आउटपुट है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, 1 लाख का आउटपुट 2010 के प्राइसेस के हिसाब से, 1,30,000 का आउटपुट 2020 के प्राइसेस के हिसाब से. इसलिए हम क्या करेंगे, इसको वी विल कन्वर्ट, हम इसको बेस लेंगे 2010 के प्राइस को. तो हम करेंगे 1,200 यूनिट्स, 1,200 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय, आई विल टेक द प्राइस ऑफ 2010 एज ए बेस. मैंने तब की प्राइस को बेस ले लिया एंड अब दिखेगा 1,20,000. सो अब बोलो आउटपुट ऑफ 2020 इज 1,20,000. क्या बोलना है, आउटपुट ऑफ 2020 इज 1,20,000 by taking the base of 2010, and therefore your growth is not 1,30,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh multiply by 100, it is 32% आएगा. ये गलत है. It is not 32%. It is actually 1,20,000 minus 1 lakh divided by 1 lakh multiply by 100. It is actually 20%. So growth is not 32%. जो आपको दिखता है 1 लाख आउटपुट 2010 में था, 1,32,000 का आउटपुट 2020 में है, बट दोनों आउटपुट उस रिस्पेक्टिव ईयर्स के प्राइजेस पे. तो हमें दिखेगा कि 32,000 विद रिस्पेक्ट टू 1 लाख मतलब 32% की ग्रोथ हुई है. दैट इज रॉन्ग. हमें यह समझना है कि यस आउटपुट इंक्रीज हुआ है. देखो 20% से आउटपुट इंक्रीज हुआ है. एक 1 लाख हैज बिकम 1,20,000, सॉरी 1,000 यूनिट्स हैज बिकम 1,200 यूनिट्स, मतलब ग्रोथ इज 20%. बट अगर आप प्राइस लेवल भी चेंज करते हो, देखो ना प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज है, प्राइस लेवल में भी इंक्रीज है भाई, ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज है. आउटपुट में 20% का इंक्रीज है, प्राइस लेवल में 10% का इंक्रीज है, एंड यहां पे आपको दिख रहा है टोटल 32% का इंक्रीज. दिस इज रॉन्ग. अगर आप बोलते हो माय ग्रोथ इज 32%, इज रॉन्ग. एक्चुअल में यू शुड कंसिडर द इंक्रीज इन द प्राइसेस लेवल. तो हम उसको कंसिडर करें, उसको निग्लेक्ट करेंगे, मतलब हम उसको लाइक इंडेक्स नंबर जैसे हम कोई बेस ईयर के विथ रिस्पेक्ट हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को मेजर करेंगे. इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी आप ठीक से जो मोदी बोलता है या कोई दूसरा पॉलिटिशियन बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है. हमें एक्चुअल फिगर चेक करनी है. और अगर एक्चुअल फिगर लिखोगे ना, वो उधर लिखा होता है ब्रैकेट में बेस ईयर. बिकॉज जब मोदी जी अगर बोलते हैं तो वो दे डोंट रेफर टू द बेस ईयर. ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो बट अगर आप प्रॉपर कोई डॉक्यूमेंट देखते हो तो वहां पे बेस ईयर लिखा होता है. जो भी नेशनल इनकम है ना, इज मेंशन विथ रिस्पेक्ट टू सम बेस ईयर. एंड बेस ईयर्स आर केप्ट ऑन चेंजिंग एवरी टाइम. बेस ईयर्स आर केप्ट ऑन चेंजिंग. ठीक है, हमेशा नेहरू के साथ कंपेयर मत कीजिएगा. ठीक है, ये भी समझ लेना, बेस ईयर इज नॉट नेहरू. 1947 के साथ यू कैन नॉट कंपेयर 2020. दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर चीज नेहरू के साथ कंपेयर, तब इतना आउटपुट होता था, आज इतना आउटपुट है, पूरी कंडीशन चेंज हुई है. कंपेयर विद 2010, कंपेयर विद 2015, कंपेयर विद 2018. एग्जांपल दे रहा हूं. आपने नेशनल इंडेक्स नंबर में सीखा होगा कि बेस शुड बी रिसेंट, नॉट द ओल्डेस्ट. जितना नजदीक होगा और जितना अनबायस्ड होगा ना, उतना राइट इंडेक्स नंबर्स आर स्ट्रांग. तो ये हमने हमारे रियल लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए. यू शुड नॉट कंपेयर योर टुडेस मार्क्स विथ फर्स्ट स्टैंडर्ड मार्क. आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो ज्यादा मार्क्स मिलते थे, तो उसके साथ कंपेयर ही नहीं करना चाहिए. लॉजिकल है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में सबको 90% के आगे मिलते थे, आजकल नहीं मिलते. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने 12th के मार्क्स आपके 10 के साथ कंपेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. प्रेशर सेम रहता है, दोनों बोर्ड्स एग्जाम्स है, तो मैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं. सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. जो आपको प्राइमा फेसिया लग रहा है कि 32,000 की ग्रोथ है या 32% की ग्रोथ है, वो रॉन्ग ग्रोथ है. योर एक्चुअल ग्रोथ
is only 20% if you ignore inflation. और आपको दिखेगा भी 1000 यूनिट्स बिकम 1200 यूनिट्स, एक्चुअली 20% की ग्रोथ है. तो वही आपको प्रिकॉशन लेना है, वही आपको प्रिकॉशन लेना है. क्या प्रिकॉशन लेना है? देखो हम प्रिकॉशन डिस्कस कर रहे हैं, राइट? ध्यान देना. द प्रिकॉशंस टू बी टेकन, किधर था वो? ओ ऊपर था. हाँ एक सेकंड. प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल इवैल्यूएटिंग द आउटपुट, changes in the price level between different year must be taken into account. So ignore inflation, ignore inflation factor. और वो कैसे इग्नोर किया जाता है? by taking some base year. Next, value of export should be, value of export should be added and value of import should be deducted. मतलब हम नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं, सो हमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट भी कंसीडर करना होगा. एक्सपोर्ट ऐड होगा, इंपोर्ट माइनस होगा. तो नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट लेंगे हम. डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड बिकॉज हमें नेट वैल्यू चाहिए होती, ग्रॉस नहीं. टू फाइंड आउट नेट, टू फाइंड आउट नेट. देन sale and purchase of second hand goods should be ignored. Sale and purchase of second hand goods should be ignored, right? As it is not the part of current year production. It is a part of some previous year production. कभी हमने 2-3 साल पहले कोई चीज प्रोड्यूस की थी और तब सेल की थी, तो उस ईयर की नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है वो. अगर आज वो रीसेल हो रहा है इसलिए आप फिर से इंक्लूड कर रहे हो, इट इज रॉन्ग. एक गुड, कोई भी एक कमोडिटी, वो 1 साल की नेशनल इनकम में आएगी या 4-5 साल की नेशनल इनकम में आएगी? नहीं. आर यू गेटिंग? इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें करंट प्रोडक्शन चाहिए. इस ईयर में कितना एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ वो हमें चाहिए. एंड देयरफॉर वी इग्नोर द सेल एंड परचेस ऑफ सेकंड हैंड, राइट, गुड्स. हम कंसीडर करते हैं ओनली करंट ईयर प्रोडक्शन. जो फ्रेश प्रोडक्शन है ना, उसको ही हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं. ठीक है, आगे सेकंड पॉइंट. मैडम सेकंड पॉइंट में क्या होता है? एग्जांपल, ये फार्मर प्रोड्यूस्ड, एग्जांपल 10,000 kg ऑफ राइस एग्जांपल. उसमें से उसने मार्केट में लेके आया 700 kg. एक्चुअली हमें क्या पता होगा? अगर हम डेटा कलेक्ट करने जाएंगे तो हमें यह पता होगा कि 700 kg मार्केट में आया. हमें ये नहीं पता होगा कि उसने एक्चुअली कितना प्रोड्यूस किया, बिकॉज फार्मर्स डू नॉट मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स इन डिटेल. ये खाली फार्मर के केस में नहीं है, ऑलमोस्ट हर केस में होता है, ऑलमोस्ट हर केस में होता है. एग्जाम्पल, आपके घर में दुकान है और आपको ही कुछ चीजें चाहिए तो आप डायरेक्टली ले लोगे. उसके थोड़े बिल वगैरह बनेगा क्या बिल वगैरह? नहीं. आप बोलोगे हम ड्राइंग्स दिखाएंगे, ठीक है, जनरली कोई लोग नहीं दिखाते. या एग्जाम्पल में ट्यूशन से, एंड कल जाके मेरा बेटा ही ट्यूशन लेने आता है मेरे पास, सपोज, उसके लिए बहुत सारी चीजें होनी पहले बाकी है, तो ऑब्वियसली मैं उसको थोड़ी फीस लगाऊंगा. तो कैप्टिव कंजम्पशन टाइप हो गई. सर्विस तो दे रहा हूं बट वो उसकी बिलिंग नहीं हो रही. एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो ये आ गया लाइक कैप्टिव कंजम्पशन. ये खाली एग्रीकल्चर में नहीं होता, एग्रीकल्चर में जनरली ज्यादा दिखेगा आपको. तो मार्केट में 700 ये पता होगा आपको, मार्केट में 700 रुपए पे आ गया, ये 700 kg आ गया, ये पता होगा. बट डज इट मीन कि एक्चुअल आउटपुट 700 था? नहीं, एक्चुअल आउटपुट एक्चुअली कितना था? 1000. बट फार्मर्स इवन दे कैन नॉट एग्जैक्टली टेल यू कि कितना कैप्टिव कंजम्पशन है. तो अब हमें कुछ तो गेस वर्क करना होगा. तो हम मानेंगे कि चलो जो भी प्रोड्यूस होगा उसका 20% कंज्यूम करेंगे, 80% सेल करेंगे, 30% कंज्यूम करेंगे, 70% सेल करेंगे. कुछ तो एस्टिमेट रहेगा. If informations are not available, you have to make some estimates. वो over a period of time जो estimates हो रहे हैं उसको कंसिडर करेंगे ना. तो क्या ऑब्वियसली पहले तो पूछेंगे, अगर नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो कुछ तो एज्यूम करना होगा. किस किस को पूछेंगे? कुछ तो एज्यूम करना होगा. तो मैं वही बोल रहा हूं कि वही बोला है, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड एट देयर राइट मार्केट वैल्यू यूजिंग गेस वर्क. हमें 300 जो मार्केट कंज्यूम हुआ है ना, 700 तो आ जाएगा नेशनल इनकम में,
बिकॉज 300 को भी हमें नेशनल इनकम में लेना है। आगे imputed value, hidden value. Imputed means hidden. Imputed मतलब hidden value of goods produced for self consumption is included in the national income. So हमें क्या क्या कंसिडर करना है? डबल काउंटिंग अवॉइड करनी है, सेल्फ कंजम्पशन में जो गुड्स कंज्यूम है उसको भी हमें कंसिडर करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो मार्केट प्राइस में छुपे होते हैं उनको माइनस करना है, एंड गवर्नमेंट ने जो हमें सब्सिडीज दी है ना, टू दैट एक्सटेंट मार्केट प्राइस कम हुई होती है, हम उसको ऐड करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की वजह से मार्केट प्राइस इंक्रीज हुई होती है, हम माइनस करेंगे। सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस कम हुई होती है, हम उसको ऐड करेंगे, सो दैट वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस एट एक्चुअल मार्केट प्राइस। देन हम राइट इन्फ्लेशन को कंसिडर करेंगे, मतलब इन्फ्लेशन फैक्टर को हमें इग्नोर करना है, मतलब इन्फ्लेशन फैक्टर को इग्नोर करना है, मतलब हमें इंडेक्स नंबर लेना है, ठीक है। सो इन्फ्लेशन को कंसिडर करो, ठीक है। देन लाइक इंडेक्स नंबर पकड़ के, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। देन हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंसिडर करेंगे, बिकॉज हमें नेशनल इनकम चाहिए। हम नेट वैल्यू लेंगे, इसलिए हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एंड हम करंट प्रोडक्शन जो है ना वही लेते हैं, इस ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ वही लेते हैं। कोई प्रीवियस ईयर में प्रोड्यूस हुआ और इस साल में वो परचेस सेल हो रहा है, मतलब वो रीसेल है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। आउटपुट मेथड इज वाइजली यूज्ड, आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इंडिया में भी ये मेथड बहुत पॉपुलर है। However, it is less reliable because of the margin of errors. देखो उन्होंने बोला भी मेथड क्या, और ये भी बोला क्या प्रॉब्लम है, राइट। इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम आउटपुट मेथड फॉलो करते हैं, मे बी फाइनल गुड अप्रोच और नेट वैल्यू एडेड अप्रोच। आगे, बट इट इज नॉट अप्लाइड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। मतलब जहां पे सर्विसेज के हो रहा है वहां पे ये नहीं फॉलो हो रहा है, राइट। सो दिस इज मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड। सो हमें 3 मेथड समझनी है, हमने उसमें से आज एक मेथड बहुत डीप में समझ ली। और ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना आप समझने का ट्राई करोगे यू विल गेट मेनी एंगल्स। यहाँ पे जो लिखा है वो तो है, उसके बियॉन्ड देयर आर मल्टीपल एंगल्स, वो भी हमें समझना है। सो दिस इज द मेथड। अब ठीक है, हम सेकंड मेथड समझेंगे, इनकम मेथड। ये सिंपल है समझने के लिए भी, बट ये इनकम मेथड जनरली डेवलप कंट्रीज में फॉलो होती है, बिकॉज वहां पे बहुत सारी चीजें बैंकिंग के थ्रू होती है, बहुत सारी चीजें आधार कार्ड, लाइक जैसे हर कंट्री का कोई एक नंबर रहेगा या पैन कार्ड, वैसे जो नंबर रहेगा उससे चीजें लिंक होती है। वहां पे लोग इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है। तो अगर वैसे वो सिचुएशन है तो इनकम मेथड इज बेस्ट सुटेबल, ठीक है। अब देखो, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज आल्सो नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। फैक्टर कॉस्ट मेथड व्हाई? बिकॉज जब हाउस होल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, हाउस होल्ड जब सर्विसेज प्रोवाइड करेगा टू द फर्म्स, फैक्टर सर्विसेज देगा टू द फर्म्स, फर्म्स विल गिव फैक्टर, राइट, विल मेक द पेमेंट फॉर देयर सर्विसेज। यहां पे फैक्टर इनकम जनरेट होगी। अगर हम इसकी टोटल लेते हैं, पूरे इंडिया के जितने सारे फर्म्स हैं उन्होंने कितना कितना पेमेंट किया, अगर उनका पेमेंट किसी की तो इनकम है, अगर हम वो ऐड करते हैं, मतलब फर्म की कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट अगर ऐड करते हैं तो हमें हाउस होल्ड की इनकम पता चलेगी। हाउस होल्ड को पकड़ना मुश्किल है एज कंपेयर टू फर्म्स, बिकॉज एज कंपेयर टू household, firms are limited in the numbers. Households are very large in the number, firms are limited in the numbers. तो अगर हम firms को पूछेंगे tell us the total factor cost, तो हमें पता चलेगा household की इनकम। समझ में आ रहा है? Instead of asking household what is your income, it is better to go and ask firms about their cost, because वो limited in the number है, वो जल्दी भी हो जाएगा, and firms का डेटा थोड़ा रिलायबल भी होगा एज कंपेयर टू हाउसहोल्ड, रिलायबिलिटी भी ज्यादा रहेगी कंपेरेटिवली। तो हम इसलिए इसको बोला था फैक्टर कॉस्ट मेथड। सो इनकम मेथड और फैक्टर कॉस्ट मेथड। आगे, दिस मेथड एस्टिमेट्स नेशनल इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन साइड। डिस्ट्रीब्यूशन साइड मतलब फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट
द इनकम, फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट द इनकम। ध्यान देना क्या होता है, आउटपुट मेथड, जो ये मेथड है ना, प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड, ये आउटपुट साइड से, आउटपुट मेथड आउटपुट साइड से कितना आउटपुट हुआ वो, इनकम मेथड डिस्ट्रीब्यूशन साइड से, डिस्ट्रीब्यूशन साइड मतलब इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसेस, इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसेस, डिपेंड्स ऑन द कंट्रीब्यूशन, लाइक जिसने जितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट किया उसको उतना प्रोपोर्शनल में इनकम मिलेगा। अगर लेबर ज्यादा यूज हुआ है तो लेबर वालों का पेमेंट ज्यादा होगा, अगर रॉ मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है तो रॉ मटेरियल का पेमेंट ज्यादा होगा, अगर लैंड रिसोर्सेज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में तो उनका रेंट ज्यादा रहेगा। सो फर्म will use the factor services, will produce goods and services and will sell the goods and services, and ये जो goods and services सेल करने पे फर्म को जो इनकम मिलेगी it will distribute to factor owners, like example लैंड वालों को रेंट मिलेगा, लेबर वालों को वेजेस देंगे, कैपिटल वालों को इंटरेस्ट मिलेगा एंड ओनर्स को, इंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलेगा। सो इन्होंने जो पैसे कमाए फर्म्स ने, वही पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिटवीन दिस फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिल गया, लैंड वालों को रेंट मिल गया, लेबर वालों को वेजेस मिल गए एंड कैपिटल वालों को इंटरेस्ट मिल गया। सो ये जो लोग कमाएंगे, फर्म्स विल अर्न बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द प्रोवाइडर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो इसलिए इसको बोला था डिस्ट्रीब्यूशन साइड, इसको क्या बोला जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन साइड, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज द कॉस्ट ऑफ द फर्म्स, इसलिए इसको कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। ध्यान देना, दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट मेथड। क्यों फैक्टर कॉस्ट, बिकॉज जब हम इनकम बात कर रहे हैं, इनकम ऑफ हाउस होल्ड बात कर रहे हो, इट इज अ कॉस्ट ऑफ फर्म्स, इट इज अ फैक्टर कॉस्ट ऑफ द फर्म, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं फैक्टर कॉस्ट मेथड। हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन साइड से देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइड से देखते हैं मतलब राइट, फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट फैक्टर इनकम, इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन साइड बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, income payments received by citizens of the country in a particular year are added up, that is incomes that accrue to all factors of production by way of rent, wages, interest and profits are added, right, are all added together, but incomes received from the transfer payments are ignored। बोलूंगा मैं transfer payments, ध्यान देना। तो हमने क्या बोला, firms will produce goods and services, will sell goods and services, they will earn the income and that income is distributed between the factors of production on the basis of their contribution। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, ये जो फर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करे इसको बोल रहे हैं उनकी फैक्टर कॉस्ट है, और ये फैक्टर कॉस्ट इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड सिटीजन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड अगर हम इसको सबको ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगी नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, बट इसमें हमें ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड नहीं करने। सर व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट्स, ध्यान देना, एग्जांपल आपके पापा को सैलरी मिलती है, सो ही इज वन ऑफ द लाइक हाउस होल्ड हु प्रोवाइड्स labor to the employer, तो he provides factor services for which he gets paid। so उनको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो नेशनल इनकम में आ जाएगी। his salary is 1 lakh, उसमें से 10,000 आपको पॉकेट मनी मिल गया, so you also receive 10,000, but you receive that 10,000 out of 1 lakh, so वो 1 lakh नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड किया है, और उसमें से 10,000 आपको जो फ्री में मिला है, एज काइंड ऑफ स्कॉलरशिप मिला है, एज काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट मिला है। पापा ने उनकी इनकम आप लोगों में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट किया, आपके मम्मी को थोड़े दिए, आपको दिए। सो क्या मैंने वो 10,000 को भी इनकम में लेना चाहिए नेशनल इनकम में? नहीं, आपको जो पॉकेट मनी मिला है वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा। आपके मम्मी को जो खर्चे के लिए, नॉर्मल खर्चे के लिए पैसे पापा ने दिए 1 लाख में से, वो नेशनल इनकम में नहीं आएंगे, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ 1 लाख ओनली विच इज ऑलरेडी इंक्लूडेड द नेशनल इनकम, बिकॉज 1 लाख ही जनरेट हुआ है, ना कि 1,10,000। सो पापा ने आपको जो फ्री में ट्रांसफर किया है ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन, वो क्या आ गया, आपका ट्रांसफर पेमेंट आ गया। वो पहले ही पापा के इनकम के थ्रू नेशनल इनकम में ऐड हुआ है, तो आपके फिर से 10,000 नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सिमिलरली आपको जो स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, एग्जाम्पल मैंने आपको स्कॉलरशिप दे दी, एग्जाम्पल आपके स्कूल ने आपको स्कॉलरशिप दे दी,
तो वो स्कूल के इनकम में ऑलरेडी वो इनकम ऐड हो जाती है, और आपको जो स्कॉलरशिप मिलती है दैट इज नॉट अगेन इंक्लूडिंग द नेशनल इनकम बिकॉज इट इज ट्रांसफर पेमेंट्स. पेंशंस रिसीव्ड, पेंशन रिसीव्ड इज विदाउट एनी कंसिडरेशन. कोई आप सर्विस जनरेट नहीं कर रहे हो, आप रिटायर हो चुके हो, फिर भी आपको पेंशन मिलती है. आप शुड नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम बिकॉज उसके लिए आउटपुट भी बनना चाहिए, उसके लिए सर्विस भी क्रिएट होनी चाहिए इन द करंट ईयर. सो वो इनकम जो सर्विसेज के थ्रू या प्रोडक्शन के थ्रू जनरेट हो रही है वही हम कंसिडर करेंगे. हम फ्री में कोई चीजें मिलती है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय द आउटपुट और सर्विस. सो वही लिखा है उन्होंने, आगे हम समझेंगे और डिटेल में, ध्यान देना. ठीक है. द डेटा पर्टेनिंग टू इनकम्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. फॉर एग्जांपल फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न्स, रिपोर्ट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज एस्टिमेट्स फॉर द स्मॉल इनकम्स. गवर्नमेंट भी एस्टिमेट्स करती है इतने इतने इनकम हो सकते हैं. ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ट्रीटेड एज सम ऑफ फैक्टर इनकम्स. जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है पूरे इकोनॉमी में उनकी इनकम को टोटल करो, आपको नेशनल इनकम पता चलेगी. earned as a result of undertaking economic activity. फ्री में नहीं, they should take part in the economic activity, मतलब they should be part of production process on the part of resources owners and reflected in the production of the total output and services during any given period. मतलब आपको जो इनकम मिल रही है ना, फैक्ट्री इनकम जो मिल रही है उसके बदले में आपने सर्विसेज देनी होनी चाहिए. यू शुड हैव टेकन पार्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. पेंशन में वो होता नहीं. पेंशन में क्या होता है, यू आर रिटायर, यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज टू गवर्नमेंट. आप कोई सर्विस नहीं दे रहे हो फिर भी आपको पेंशन मिल रही है. कोई बोलेगा सर ये इनकम है, शुड वी इंक्लूड इन द नेशनल इनकम? इज इट सपोर्टेड बाय द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोडक्शन? नो. तो पेंशन को मत ले लो. जो आपको स्कॉलरशिप मिली है उसके लिए आपने कोई एफर्ट्स डाले हैं क्या? आपने वहां पे एम्प्लॉयर के पास काम आप नहीं, तो डोंट टेक दैट. ट्रांसफर पेमेंट्स को नहीं लेना है. एंड ऑल दोस इनकम्स व्हिच इज अर्नड विदाउट टेकिंग पार्ट इन द प्रोडक्शन वो भी हमें एक्सक्लूड करना है. राइट अंडरस्टैंड. आगे thus GNP according to income method is rent earned by the land, wages earned by the laborers plus interest earned by the capital providers plus profit earned by the entrepreneurs plus mixed income. कभी कभी एक बंदे की अलग अलग इनकम हो सकती है. लाइक एग्जांपल आई अर्न थ्रू प्रोफेशनल फीस फ्रॉम द एकत्वम कैंप, एट द सेम टाइम आई डू इन्वेस्ट. तो मेरी वो इन्वेस्टमेंट की भी इनकम हो सकती है. इंटरेस्ट एग्जांपल, मुझे इंटरेस्ट मिला है एफडी पे इंटरेस्ट मिला है एग्जांपल. या मैं कहाँ पे ऑडिट भी करता हूँ वहां से भी मुझे फीस मिलती है एग्जांपल. मैं कहाँ पे दूसरी जगह पे सिखाता हूँ वहां से इनकम मिलती है. मेरे घर में एग्रीकल्चर है, राइट, खेती है, एग्रीकल्चर इनकम है मेरी. सो देयर कैन बी मिक्स्ड इनकम, राइट. प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. सो हमें क्या लेना है, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स प्लस अगर किसी की मिक्स्ड इनकम है, राइट, अलग अलग सोर्सेज से इनकम है किसी की, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे. प्लस नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड. सो राइट वो हमने लिया है. आगे देन राइट व्हाट आर द प्रिकॉशंस. प्रिकॉशन समझ लेना, ध्यान देना. प्रिकॉशंस, फर्स्ट प्रिकॉशन, transfer incomes or the transfer payments like scholarship, gifts, donation, charity, old age pensions, unemployment allowance should be ignored because it is free. आप इसमें you are not taking part in the production process, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. या ये इनकम्स ऑलरेडी किसी के इनकम में के थ्रू आपको मिली होती है तो उसकी इनकम नेशनल इनकम में ऑलरेडी क्या की होती है, इंक्लूड की जाती है. ठीक है. सो राइट ये समझना इंपॉर्टेंट है. सो ऑलवेज एंड ऑलवेज इग्नोर ट्रांसफर इनकम्स और ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप. आपको किसी ने गिफ्ट दिया, जिसने गिफ्ट दिया उसके इनकम में तो ऑलरेडी नेशनल इनकम में गई उसकी इनकम, तो जिसको गिफ्ट मिला है वो फिर से इनकम में आएगा तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. सो स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशंस, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी इग्नोर्ड. सो एग्जांपल हम जो मंदिर में पैसे डालते हैं ना, शिरडी, राइट, आपका बालाजी, कितना पैसा आता है उधर, वो नेशनल इनकम में नहीं आता. सोचो अब कितना. अब बालाजी और शिरडी, आई एम फ्रॉम नगर तो मुझे पता है क्या पैसा जमा होता है, सोच भी नहीं सकते. इतना पैसा लोग डोनेट करते हैं, वो नेशनल इनकम में आता नहीं. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
नेशनल इनकम में वो डोनेट हुआ है. सो सीडी हैज नॉट टेकन एनी एक्टिविटी, प्रोडक्शन एक्टिविटी की लोग उनको डोनेट करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो बोलेंगे सर बाकी चीजें, वो नहीं बोल रहा मैं, डोनेशन, वो जो डोनेशन बॉक्स होता है उसमें जो पैसा है ना, उसकी बात कर रहा हूं. तो वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता. डोनेशंस, स्कॉलरशिप्स, ओल्ड एज पेंशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आई थिंक अभी गवर्नमेंट 2000 देती है क्वार्टरली शायद से फार्मर्स को. जिसके नाम पे जमीन है उसको 2000 मिलता है शायद से क्वार्टरली. अभी रिसेंटली मुझे पता चला 2000 क्वार्टरली मिलता है. इट इज काइंड ऑफ, वो नेशनल इनकम में नहीं आएगा. क्यों? जस्ट गवर्नमेंट देती है, आपको देती है. ठीक है. कांग्रेस ने बोला था हम 6000 देंगे, कुछ तो पर उनका कुछ तो था कि हम, तो उन्होंने कुछ तो लाया था, तो बीजेपी ने ऐसे कुछ तो लाया. तो वो दे रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इनकम. इट इज लाइक ए डोनेशन. समझ में आ रहा है? फ्री में दे रहे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस काइंड. तो वो भी इनकम में नहीं आता बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. सेकंड, ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक योर मम्मी प्रोवाइड्स यू सर्विसेज, वो आपका पूरा घर संभालती है, उनको उस सर्विसेज, यहाँ पे सर्विसेज क्रिएट नहीं हो रही है. फर्स्ट में सर्विसेज आर नॉट क्रिएटेड एंड सेकंड में सर्विसेज क्रिएट हो रही. क्या है? ऑल अनपेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, टीचर्स टीचिंग हिज और हर चाइल्ड शुड बी इग्नोर. यहाँ पे सर्विसेज नहीं इसलिए इग्नोर कर रहे हो, यहाँ पे सर्विसेज है बट इनकम जनरेट नहीं हो रही इसलिए इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, आगे नेक्स्ट, अनपेड सर्विसेज को इग्नोर करो. थर्ड, एनी इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स लाइक कार हाउस शुड बी इग्नोर्ड. सेकंड हैंड चीजों को कंसिडर मत करो बिकॉज फर्स्ट ईयर में जब सेल हुआ होगा तभी जो इनकम जनरेट हुई होगी उस ईयर के नेशनल इनकम में इंक्लूड है. रीसेल के टाइम जो इनकम जनरेट हो रही है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी. उस ईयर के भी नेशनल इनकम में दिखेगा, इस ईयर के भी नेशनल इनकम में दिखेगा. दिस विल बी रॉन्ग. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट एड एनीथिंग टू रियल नेशनल इनकम. उससे एक्चुअल में कोई आउटपुट इंक्रीज नहीं होता. एग्जाम्पल, रिलायंस के 10,000 शेयर्स है, एग्जाम्पल टोटल ज्यादा शेयर्स है, रिलायंस के 10,000 शेयर्स है, मार्केट में वो परचेस सेल होते रहते हैं. मान के चलो रिलायंस के 10,000 शेयर्स लिस्टेड है एग्जाम्पल के तौर पे, वही शेयर्स परचेस सेल होते रहेंगे. सो एक्चुअली कोई अलग एडिशन, रियल एडिशन हो रही है क्या शेयर्स में? नहीं. परचेस सेल होता है बट रियल एडिशन होती है क्या? नहीं. इसलिए हम उसको इग्नोर करते हैं. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड द बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर्ड एज दे डू नॉट, राइट राइट, दे डू नॉट, क्या लिखा है उन्होंने, राइट, एड टू एनीथिंग टू रियल आउटपुट. हमें आउटपुट के साथ लिंक करना है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. खाली इनकम नहीं देखनी है, वो आउटपुट भी दिखना चाहिए हमें. देन revenue received by government, revenue received by government through direct access should be ignored as it is only transfer payment. एग्जाम्पल, मेरी इनकम 1 लाख है, मेरी इनकम 1 लाख पर मंथ है. ठीक है, तो मैं, ये तो नेशनल इनकम में 1 लाख इंक्लूड हो जाएगा. यस. इसमें से मैंने 20,000 टैक्स पेड किया, टीडीएस, मैंने 20,000 टीडीएस पेड किया, तो 20,000 इस 1 लाख में से ही पेड किया है, तो इट इज एज गुड एज डोनेशन टू द गवर्नमेंट. मैं इससे बोल सकता हूँ ना कि मैंने टैक्स दिया, इट इज एज गुड एज डोनेशन टू गवर्नमेंट. समझ में आया? इट इज अ ट्रांसफर पेमेंट. तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस कलेक्ट करती है लोगों से, इट इज इनकम ऑफ गवर्नमेंट. सो शुड वी इंक्लूड दैट. अगर हम 1 लाख को भी इंक्लूड कर रहे हैं, मेरे 1 लाख को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और जो मैंने 20,000 उस 1 लाख में से गवर्नमेंट को दिया है वो भी इंक्लूड होगा, तो इनकम दिख रही है 1,20,000 बट एक्चुअली इनकम 1 लाख ही है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसलिए जब मैं मेरे में से किसी को गिफ्ट देता हूं वो भी इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी. तो उसको 10,000 मैंने दिए, मैंने मेरे फ्रेंड को 10,000 गिफ्ट तौर के दिए, तो वो 10,000 उसकी इनकम नहीं माना जाएगा नेशनल इनकम के लिए. और मैंने 10,000 का टैक्स पेड किया, वो गवर्नमेंट को 10,000 मिला है, वो भी गवर्नमेंट, वो भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा बिकॉज मेरे पूरे के पूरे 1 लाख ऑलरेडी नेशनल इनकम में है. ठीक है. सो रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू डायरेक्ट एक्सेस, right, should be ignored as it is only the transfer payment. Then undistributed parts of the companies profits reserve, हमने पार्टनरशिप में देखा है, accumulated profits and losses, those are not distributed between the partners. वैसे कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती है, they do not distribute entire profit as a dividend, they retain some profit
They plug back profit for the expansion growth. They do not give entire profit to the shareholders in the form of dividend. Try to understand. Undistributed profits of a companies. Undistributed profits of companies, income from government property, profits from public enterprises such as water supply should be included. हमने वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, लोगों को डिविडेंड नहीं दिया, इसलिए जो कंपनी जो प्रॉफिट कमाए वो इनकम नहीं, ऐसे नहीं है, हम उसको भी इंक्लूड करेंगे. गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज रेंट आउट होती है, सीओपी का ग्राउंड, राइट, एग्जांपल मनपा का कोई हॉल है वो रेंट आउट होता है, उससे जो मिलता है पैसा वो भी इनकम है, वो रियल प्रोडक्शन है, उसको भी हम कंसिडर करेंगे. गवर्नमेंट जो हमें फैसिलिटीज देती है, रेलवेज, वाटर, राइट, एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उसका भी इंक्लूड होना चाहिए. इंप्यूटेड वैल्यू, हिडन वैल्यू जो हमें एस्टिमेट करनी होती है, imputed value of the production kept for self consumption and imputed rent of the owner occupied houses should be included. जिसमें हम खुद रहते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज, उसका भी रेंट एस्टिमेट बेसिस पे कंसीडर करेंगे, बिकॉज हम एक्चुअली रेंट पे नहीं करते. जिसमें हमारा खुद का घर है उसके लिए तो हम रेंट पे नहीं करते, तो हम उसकी सेल्फ एक एस्टिमेट करके हम उसको लाइक ले लेंगे. Then, in India, National Income Committee of the Central Statistical Organization uses income method for adding up income arising from trade, transport, professional, liberal arts, public administration, and domestic services. So, क्या-क्या precaution लेनी है? First, do not include transfer payments. Do not include unpaid services like housewife, right, services of the housewife. Do not include income generated on second hand sale or sale of resale of goods and services, or sale of second hand goods and services. Do not include income generated on sale of shares and debentures and bonds. ठीक है, government earns taxes, direct taxes, government receives direct taxes from the public. Do not consider it in the national income accounting. Then, undistributed profits of the companies, income from government properties, profits from public enterprises, like ONGC profit कमाती है, कोल इंडिया प्रॉफिट कमाती है, राइट, बीपीसीएल प्रॉफिट कमाती है, सपोज एचपीसीएल प्रॉफिट कमाती है, वो गवर्नमेंट कंपनीज जो पब्लिक इंटरप्राइजेस है उनके भी प्रॉफिट्स हम कंसिडर करेंगे. ठीक है, सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज, income from government properties, profits from the government enterprises, public enterprises such as water supply etc. should be included. ठीक है, imputed value of the production kept aside for the self consumption, हमने प्रोडक्शन में भी देखा था, जो कैप्टिव कंजम्पशन के लिए रखा है उसकी गेस वर्क पे वैल्यू ढूंढो और नेशनल इनकम में ऐड करो. वैसे ही लाइक अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी खुद के यूज के लिए रखी है तो उससे कितना रेंट जनरेट होता, हम वो इंक्लूड करेंगे इन द नेशनल इनकम. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड मेथड, इनकम मेथड. सो लेट मी चेक द क्वेश्चंस. देयर आर मेनी क्वेश्चंस. देन मैंने पहले ही बोला है द टोटल प्रोडक्ट मेथड एंड नॉट नेट प्रोडक्ट नेट वैल्यू एडेड मेथड, बोथ आंसर आर सेम. देयर आर नो प्रोस एंड कॉन्स, कोई फर्क नहीं, इट्स योर चॉइस. आगे next, what about OLX and Quikr? They are making profit in the second hand selling. मैंने आपको बोला वो उनकी जो सर्विस ब्रोकरेज, मैंने बोला है जब आप शेयर्स परचेस सेल करते हो तो उस परचेस सेल को लेना नहीं है, बट जो ब्रोकरेज अर्न होगा ना उसको लेना है. सो जो ब्रोकर है जो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवा के देता है, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा के देता है, he charges some brokerage, वो ब्रोकरेज नेशनल इनकम में आएगा. सिमिलरली OLX वगैरह जो सेकंड हैंड चीजें परचेस सेल करने का प्लेटफॉर्म रेडी करवा के दे रहा है, उसके लिए दे चार्ज सम फीस, वो उनकी जो फीस रहेगी वो नेशनल इनकम में कंसीडर होगी. ब्रोकरेज कंसीडर होगा, वो प्लेटफॉर्म जो अवेलेबल करवा के दिया उसके लिए जो सर्विसेज है जो भी रहेगी, राइट, वो नेशनल इनकम में ऐड होगी, बिकॉज दैट इज अ न्यू सर्विस गिवन बाय देम. ठीक है, वो इंक्लूड होगी. आगे ठीक है,
ओके, ठीक है। वी नीड, हमें इनकम नहीं ढूंढनी है, हमें आउटपुट की इनकम ढूंढनी है। पहले ये दिमाग रखना, आउटपुट की वजह से क्या इनकम हुई वो नेशनल इनकम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इनकम तो बहुत ज्यादा रहेगी, बट जब मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं तो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए उसकी वजह से जो इनकम है वो ढूंढनी है। सो रीसेल की वजह से भले ही प्रॉफिट ज्यादा हो, बट इज इट अ करंट ईयर प्रोडक्शन? नहीं, तो हम नहीं इंक्लूड करेंगे, ठीक है। हमें इनकम ढूंढने को नहीं बोला है, हमें नेशनल इनकम ढूंढने को बोला है, विच इज आउट ऑफ बिकॉज ऑफ आउटपुट। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी सेकंड मेथड खत्म हो गई। थर्ड मेथड और बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर ऑलमोस्ट हमारा डन हो जाएगा, ठीक है। थर्ड मेथड एंड लास्ट, पढ़ लेना एक बार, थ्योरी ठीक से पढ़ लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम धीरे धीरे जा रहे हैं और हर पॉइंट समझ के कर रहे हैं, ठीक है। बट जितना सिंपल ये टेक्स्ट बुक में लिखा है ना, उतना सिंपल रियल लाइफ में नहीं है। ये भी समझ लेना कहाँ पे, तो बैक ऑफ द माइंड ये समझ लेना, ठीक है। थैंक यू।